photonic crystal. This was mentioned in the PIB, Public Information Bureau, on a government website. The news was graphene stabilized tunable photonic crystal can make more durable and better reflective display and the laser devices. So if we see in our news itself, we are seeing the application, a reflective display and the laser devices. So you can write reflective display and laser devices. So these are the basic application photonic crystal. So first of all, we will look what is a photonic crystal. These are the nanomaterials. Photonic crystals are the nanomaterials in which the refractive index changes continuously. Anybody, what is the refractive index? When light travel from one medium to another medium, it bends. This is known as the refractive index. So mainly in the photonic crystals, what happens? It's the optical nanostructure materials, जहाँ पे refractive index continuously change होता रहता है, entering the one medium to another medium, then it's again change from the another medium to another medium. मतलब जितना medium change होगा उसके according fast तरीके से यहाँ पे refractive index change होता रहता है. तो photonic crystal एक dielectric structures होता है that form the band structure. Dielectric structure होते हैं जो mainly cover होते हैं negative charge से, उनके center पे positive charge होता है. These are a dielectric structure. When we put a dielectric structure in a magnetic field, these charge align itself and then the current can pass through them. When a dielectric material placed in an electromagnetic field, then the charge aligned itself according to their cathode and anode, and then the charge can pass through them. So this is a basic idea of a photonic crystal. These are the nanomaterials which are having a refractive index changes continuously. So where we can use these photonic crystals, making the different applications based on their property. Means whenever we are developing application, तो हमारा idea क्या रहता है? When we are using it 4-5 interface में हम use कर रहे हैं, एक को X चीज चाहिए, दूसरे को Y चीज चाहिए. Having the different refractive index. If I am having कोई material है उसका refractive index 2 है, तो वो उसी 2 की रेंज में ही एक्टिव होगा. दूसरा 5 है तो 5 की रेंज में ही एक्टिव होगा. तो it can segregate different types of activity. तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हेल्प करता है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मेकिंग लाइक सोलर प्लेट्स में मेकिंग में हेल्प कर सकता है, या फिर लेजर में जहां पे लेजर यूज होता है वहां पे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल रेंज इट कैन बी चेंज. सो इसका मेनली इफेक्ट क्या है? दिस इफेक्ट द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेम वे दैट द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल क्रिस्टल गिव द डिफ्रैक्शंस एंड द एटॉमिक लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. जैसे जैसे लाइट पास होता है उससे, जो नैनो मटेरियल से लाइट पास होता है तो उससे उसकी नैनो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें वो इंपैक्ट होते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से इंपैक्ट होने की वजह से जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो इनका अरेंजमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इंपैक्ट करेगा इन फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में. तो मेनली आपको ये याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं क्या? दीज आर नैनो मटेरियल्स. मेनली ग्राफीन्स, ग्राफीन्स का नाम सुना होगा, जो कार्बन स्ट्रक्चर्स होते हैं, कार्बन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ग्राफीन से रिलेटेड है. ऑप्टिकल नैनोमटेरियल्स एंड दैट आर इंपैक्ट चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली. तो इसमें एक मेजर पॉइंट आ सकता है कि ये नेचर में ओरिजिनली मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं या ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किए हैं. तो दीज आर एग्जिस्ट इन द नेचर. नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. यू सी द सम बर्ड्स, बटरफ्लाई के विंग्स देखोगे चमकते रहते हैं. कुछ बटरफ्लाईज होते हैं उनके विंग्स चमकते रहते हैं. पीकॉक के विंग्स देखोगे तो वो भी चमकते रहते हैं. तो उनमें भी ये नैनो मटेरियल्स या ये फोटोनिक क्रिस्टल्स होते हैं. तो दीज आर द, तो एप्लीकेशन कहां पे पूछा जा सकता है आपसे? फोटोनिक क्रिस्टल अक्कर इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर कलरेशन एंड द एनिमल रिफ्लेक्टर्स. तो यहाँ पे एनिमल रिफ्लेक्टर्स में एंड डिफरेंट कलरेशंस में यूज होता है. तो दैट कैन बी द एप्लीकेशंस. इफ यू थिंक कि अगर इस एप्लीकेशंस को मिस करेंगे तो यू कैन नॉट मार्क योर क्वेश्चन राइट. अगर आपको सिर्फ फोटोनिक क्रिस्टल्स के बारे में पता है, उसकी नेचर में एप्लीकेशंस नहीं पता है, तो एग्जाम रिलीवेंस के अकॉर्डिंग आप नहीं जा रहे हैं. So it should be very important in the form of structural coloration and animal reflectors. Examples आपको दिया है यहाँ पे. Opal, butterfly wings, peacock feathers exhibit the decent colors. So we can see their examples. You can see these are the in natural colors में यहाँ पे multiples photo electrons है. Photonic crystal multiples हैं. तो यहाँ पे according to their reflect होता है and जो इनका refractive index के according है, according to their refractive index they show the different colors. तो वी कैन सी द पीकॉक फेदर. सबने ही देखा होगा, सबके पास होता है, घर पे भी है. मोर्फो बटरफ्लाई, डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाईज होती हैं. कुछ होती हैं कि जो रिफ्लेक्ट करती हैं डिफरेंट कलर्स में, कुछ चमकती हुई बटरफ्लाईज आपको दिखेंगी नेचर्स में. तो वहां पे भी फोटोनिक क्रिस्टल्स होते हैं. इफ देयर इज एनी एप्लीकेशंस इन योर क्वेश्चन, तो देन आप कुछ देखते हैं नेचर्स में है
कुछ स्टोन्स में भी होता है, कुछ स्पेसिफिक स्टोन्स होते हैं, या फिर एनिमल्स में होता है। तो यू शुड नो कि कहाँ कहाँ पे फोटोनिक क्रिस्टल्स नेचर में मिलता है। देन टू द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, इन एनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में भी इसका यूज हो सकता है। इन लेजर्स, जो लेजर्स, जहां पे लेजर्स का यूज होता है वहां पे भी इसका यूज हो सकता है। इवन या कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए फोटोनिक क्रिस्टल का यूज हो सकता है। So if the information is on the PIB and on the government website, so it become very important. Chance of asking in question paper is more rather than the other information. Next, we see the applications of the photonic crystals. Photonic crystals are prominent applications ranging from reflection coating to optical computers, artificially produced engineer laboratories. Laboratories में जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वहां पे फोटोनिक क्रिस्टल्स का यूज होता है, क्योंकि डिफरेंट सैंपल्स को देखने के लिए, डिफरेंट सेल्स को देखने के लिए, क्योंकि डिफरेंट लाइट्स के अकॉर्डिंग आपके सैंपल्स का मेजरमेंट्स होता है, तो वहां पे भी इनका यूज होता है। दे आर अनेबल टू पीसी टू एग्जिबिट स्ट्रक्चरल कलर्स, डिफरेंट कलर्स को मॉनिटर्स करने के लिए वहां पे इनका यूज होता है। फेज ट्रांजिशंस, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन बिहेवियर्स एंड एक्सटर्नल स्टिमुलेट इज अट्रैक्टिंग द सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। बायोलॉजिकल फील्ड में, लाइक आपने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी में इनका एक अलग ही रोल है टू चेक द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस। और जब हम क्रिस्पर कैस9 एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू कट किया जाता है डीएनए को, तो वहां पे भी उस फील्ड में भी इसका ज्यादा मेजर रोल है। तो इफ देयर इज एन ऑप्शन, देयर कैन बी यूज बायोलॉजिकली टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी में, देन वी कैन सी इन अ कंप्यूटर डिवाइसेस, देन इन नेचर। These 4-5 option can be there. Like drones का क्वेश्चन आया था इन ड्रोन 2021 क्वेश्चन, there was a question the application of drones. वहां पे शार्क से रिलेटेड कोई ऑप्शन था कि ड्रोन्स कैन मेजर द शार्क, या शार्क या व्हेल से रिलेटेड कुछ था, हाँ उसको मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी होती है। इफ देयर इज अ 4 ऑप्शन आर करेक्ट, यू कैन सी हो सकता है या हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। इफ देयर इज अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव दैट कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी, सो इन 70-20% केस वो ऑप्शन करेक्ट होते हैं। अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है ड्रोन्स के लिए, अगर 5G का एप्लीकेशन है, दे आर सेइंग कि 6G में ये हो सकता है, दैट कैन बी हैपेंड। अगर वो अनरियलिस्टिक नहीं है तो उस केस में 70-80% ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो यू कैन मेक एलिमिनेशन देयर। अगर आप देखोगे तो 2021 से पहले जितने भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थे, मोस्टली 60% क्वेश्चन इस टेक्निक के बेस पे सोल्व हो जाते थे, लेकिन 2022 में उन्होंने पैटर्न बदल दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर यूजिंग दिस टेक्निक। तो इस केस में उसी क्वेश्चन पे आप एप्लीकेशन यूज करेंगे जहां पे आपको लग रहा है कि 3-4 एप्लीकेशन करेक्ट हैं, लेकिन 2-3 एप्लीकेशन में फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। इफ यू थिंक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इज डेवलपिंग मोर, बायोलॉजिकल फील्ड इज डेवलपिंग मोर, तो उस केस में दैट कैन बी डन। सो दिस इज अ क्वेश्चन, यू कैन इजिली मार्क दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान है, लेवल 1 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द फोटोनिक क्रिस्टल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। They are the optically nanostructure in which the refractive index changes periodically. Photonic crystals do not occur in the nature. What is the answer? 1. They occur in the nature. यहाँ पे examples भी हो सकते हैं और can be question completely application based हो सकता है। 5 application and option will be 1, 2 only, 2, 3 only, 4, 5 only. उसके basis पे the question can be asked.